Hello friends, today my destination is Studio Agon in Sia Park, market number 2. I'm on my way from Greater Kailash metro station. I just took this e-rickshaw और जा रहे हैं मिलने के लिए श्री तोड़ित मित्रा और उनके टीम से। समसप्तक थिएटर ग्रुप वो चलाते हैं और समसप्तक थिएटर ग्रुप का जो स्टूडियो है उसका नाम है स्टूडियो आगोन। एंड आई एम जस्ट एंटर्ड Sia Parks area and they're doing a beautiful multidisciplinary exposition called Blackorama, and this is market number 1 right now. On my left side you can see this is basically market number 1 आएगा पहले. First it will be market number 1, then it will be Mela ground, then market number 2 will start. So this is Sia Park, this is I block on my right. और मैं आपको बताता जाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, किन से मिल रहा हूँ. ब्लैकोरामा के बारे में धीरे धीरे पता चलेगा आपको. आई विल रिवील इट ग्रेजुअली. See on my left is market number 2. Sorry, market number 1. I'm sorry. Market number 1. This is market number 1. Yes. ये market number 1 शुरू होगा. एंड यहाँ पे बहुत अच्छा फिश मार्केट भी है, फिश एंड वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग. This Sia Park I block on my right side. और चल रहे हैं हम लोग स्टूडियो आगोन की तरफ. एंड टुडे इट रेन्ड इन द मॉर्निंग. इट्स अ वेरी रेनी डे. बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है. एंड आई वॉज इन्वाइटेड बाय अंजन बोश. So going towards the studio. This is Mela ground on my right side. जो देख पा रहे हैं आप, this is Mela ground, famous for Durga Puja. And I used to stay in Sia Park. I was here from 1980 till 1994. So I love this place. मैं बचपन में यहीं गुजारा है मैंने. And this is market number 2. Fish market भी है यहाँ पे. This is market number 2 on my right side. अभी तो बहुत चेंज हो गया है. पहले तो मतलब कुछ भी नहीं था और छोटा सा मार्केट हुआ करता था. नाउ इट्स ए huge market. I just got down from the e-rickshaw. This is market number 2, Chittaranjan Park, New Delhi. Now I will be walking towards Studio Agon, H block. So let's walk. मैं आपको पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे है ये, ताकि आपको अगर जाना हो तो आप जा सकेंगे. It's not very difficult to find out this space. This space is amazing. I have heard, I have seen this space. और काफ़ी कुछ एक्टिविटी ये लोग करते हैं. So let's explore. And on my left is E block. और मैं अभी रोड क्रॉस करूँगा. I'll be going towards H block now. So you have to get down at Greater Kailash metro station
then you can take e-rickshaw. So this is the way. On my left is Savitri Cinema Hall and Greater Kailash Metro Station. आप वहाँ से आ सकते हैं. You can get down at Govindpuri also. वहाँ से भी आ सकते हैं. So metro or by car, whichever is convenient for you. So I'm walking towards Studio Agon. Sia Park is basically the destination point for all Bengalis in Delhi. बहुत बंगाली फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं. दुर्गा पूजा होता है यहाँ पे. ये दिस इज़ द एंट्री पॉइंट टुवर्ड्स स्टूडियो आगोन. वेल आई एम गोइंग टुवर्ड्स संसद तक आगोन स्टूडियो. दिस इज सिया पार्क H block, and I'll be covering their art and theatre events. So काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ मैं. आज मौका मिला है फिर से दोबारा आने का. And today it's raining basically. आज cloudy भी है, raining भी है. And I'm going towards their studio. It's H block Sia Park. This is Chittaranjan Park, New Delhi. ये एक पार्क है उनके सामने ही. इस पार्क के साथ लगा हुआ है. So I'm still walking towards that studio. पहुंच चुके हैं. थोड़ा सा और चलना होगा. I used to stay in Sia Park from 1980 till 1994 till 95, I suppose. 94, 95, yeah. This is H1511, and as you can see, it's written over here, Blackorama. Blackorama चल रहा है. Theatre of the Dark, and श्री तरित मित्रों का लिखा हुआ 6 plays. It has already been staged. Today is the culmination day, end of this thing, from 23rd to 28th. Just bang opposite to this beautiful park. और सिया पार्क में हूँ मैं अभी. So I'll be entering this space. Okay. या फ्रेंड्स, आज ब्लैकोरामा के लिए हम लोग मिल रहे हैं श्रीमोई एंड अंजन से. मैं अभी आए. आर्ट कीपर के सारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ ब्लैकोरामा. आई एम पॉइंटिंग दिस क्वेश्चन टुवर्ड्स श्रीमोई फर्स्ट. What is Blackorama? Since when you people have been doing this kind of things? And what is the purpose of this Blackorama? Please. Blackorama is basically हमारा एक आर्टिस्टिक मूवमेंट हमने तैयार किया है जिसका नाम है थिएटर ऑफ द डार्क, जो वहाँ पर आप देख सकते हैं. हाँ. तो ये बेसिकली हमारे जो गुरु हैं, हमारे विजनरी हैं हमारे ग्रुप के, श्री तरित मित्रा, पिछले 40 सालों से नाटक लिख रहे हैं. ही इज़ अ पोएट, ही इज़ एन ऑथर, और खुद एक विजुअल आर्टिस्ट है, फाइन आर्टिस्ट है. ओके. एंड उनकी जो इतने सालों की जो इंक्वायरीज है, जो इन्वेस्टिगेशंस है, उन्हीं को हमने एक नाम दिया है. और उसी के अंतर्गत ब्लैकोरामा हो रहा है. दिस इज द 4th फेज एक्चुअली ऑफ थिएटर ऑफ द डार्क. इससे पहले भी हमने अंतरीन नामक प्रोजेक्ट किए हैं. अंतराल नामक प्रोजेक्ट किए हैं. 2016 वी स्टार्टेड ऑफ. और उसका सबसे बड़ा एक्सपोजिशन हमारा दीर्घ जामा में हुआ. द लॉन्ग नाइट. दीर्घ जामा. यस, एंड इट बिकेम एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, एज टू से. यस, जैसे यहाँ पे 6 नाटक हो रहे हैं, उसमें 6 सोलोज थे.
वाओ, सर के ही लिखे। ओके, एंड लेकिन ब्लैकोरामा का सबसे बड़ा खासियत है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 भाग हैं इसके। हाँ। पहला है विजुअल आर्ट एग्जीबिशन, ओके, दूसरा है थिएटर परफॉर्मेंस जिसके लिए संसद तक पिछले 27 साल से वैसे ही काम कर रहा है। ओके, एंड उसके साथ साथ है डिजिटल ऑडियो विजुअल बुक्स। ओके, पहली बार शायद थिएटर को हाँ, इलस्ट्रेट या विजुअल आर्ट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये सिमोई बता नहीं रही है, मतलब शर्मा रही है शायद बोलने के कि बेसिकली जो 6 नाटक जो सर ने लिखे हैं, हाँ, उसको ब्लैकोरामा में तब्दील करने के पीछे षड्यंत्र इसका है। It's her. She's the mastermind. She's the mastermind and the blackhead behind it. Okay. उसने हमको इस पूरे एक्सपोजिशन के बारे में एक कंसेप्चुलाइज किया था। Okay. और हमको हमारे आग लगा दिया और हम यहाँ इस मुकाम पे पहुंच गए। तो और उसके साथ एक पब्लिकेशन भी रिलीज करना चाह रहे हैं जो आप देख सकते हैं। ये एवी बुक्स जो है, दीज आर इलस्ट्रेटेड बाय आवर मेंबर आर्टिस्ट्स ओनली। और वो पार्ट ऑफ योर थिएटर ग्रुप, because they are visual artists also. They are yes, professional visual artists. So और पब्लिकेशन भी नाटक का टेक्स्ट होगा उसके साथ, उसके इलस्ट्रेशंस जाएंगे। दिस विल बी डिजिटली डन और फिजिकल फॉर्मेट में होगा? फिजिकल फॉर्मेट में इसको हम बाद में लेके आएंगे। फॉर द टाइम बीइंग दोनों हम डिजिटल ही रिलीज करेंगे। एंड व्हिच प्लेटफॉर्म यू आर चूजिंग फॉर दैट? We are choosing YouTube as well as Facebook also and our website Your and official Instagram. website will be there. Yes. Okay. एंड आप देख सकते हैं कि उसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह हमने स्टूडियो में वगैरह किए हैं जी। और अभी जो चल रहा है वो हमारा विजुअल आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है जिसमें ऑन जोन क्यूरेट कर रहे हैं पूरे एग्जीबिशन को राहुल चौधरी के साथ। राइट। सर के काम लगे हुए हैं, राणा मित्रो एंड राहुल चौधरी, अंजलि बवासे एंड तथागत चाकी और फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं सरनेंदु चाकी, मेरे खुद के एंड ऑयन बैनर्जी एंड हमारे जो मेंबर आर्टिस्ट हैं इंक्लूडिंग रूमा बोस, उनके कोलाजेस लगे हुए हैं जो वर्कशॉप के थ्रू हमने किए थे। बेसिकली सर का मास्टरमाइंड है। एंड ऑनजोन आप थोड़ा सा बताएं कि किस हिसाब से आपने इस एग्जीबिशन को क्यूरेट किया? एग्जीबिशन को क्यूरेट करने का पीछे का उद्देश्य ब्लैकोरामा ही था। और जब हम इसके लोग के काम करने लगे और सर के साथ बातें होती थी और बाकी आर्टिस्टों के साथ बातें होती थी, तो हम सोचते थे कि इसको और किस तरीके से इसको एग्जीबिशन की जब बात हुई थी तो हम अपने हिसाब से भी काम कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट को लेके। मोस्टली द हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और किस तरीके से उसको और सामने लाया जा सके। द फैक्टर ऑफ फियर जो हम कोविड-19 में महसूस कर रहे थे, आइसोलेशंस और ये सब नैरेटिव्स जो साथ में घूम फिर के आ रहे थे, उन्हीं नैरेटिव्स के आसपास हमारा काम भी घूम रहा था और सर के लिखावट भी घूम रहे थे। तो उसको लेके पूरा एक मिला के हमने चीज़ को बनाया। तो एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट हम यहाँ पे अपने आप को नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वी आर अ ग्रुप, वी आर प्रोजेक्टिंग एज एन आइडियोलॉजी, एन आइडिया विच इज मोर इम्पोर्टेंट टू इम्पैक्ट the mind and the heart of the audience and the viewers. And the reason because we have chosen black and white. Right. Because कोविड जैसे हुआ और लॉकडाउन हो गए, सब अपने आप में इस तरीके से सिकुड़ गए और एक अनसर्टेन बंद गए एक जगह। हाँ, एक जो फियर फैक्टर, फियर साइकोसिस डेवलप होने लगा, उसी का एक्सपोजिशन इसके थ्रू ब्लैकोरामा के थ्रू निकल के आ रहा है। एंड वी हैव अ होम टर्फ कॉल्ड स्टूडियो एगॉन, जहाँ पे ये सारा हो रहा है। एंड दुनिया से छुपा के एक अंतराल में हम बैठ के अपना जैसे पाताल लोक में जाके अंडरग्राउंड कल्चर जैसे स्टार्ट होता है। अंडरग्राउंड कल्चर में जैसे क्रिश्चियनिटी भी अंडरग्राउंड कल्चर में शुरू हुआ था और डाडा भी अंडरग्राउंड कल्चर में शुरू हुआ था। तो वी आर टेकिंग ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ डाडा। It's a kind of movement you people are doing. It is self-proclaimed because artists are not been proclaimed by anybody else, so artists are proclaimed. Self-proclaimed करना पड़ता है। So this is a kind of, we are including a lot of artists who wants to speak their language, who wants to speak one idea, right? And which is a requirement of the time. हमको महसूस होता है, किसी और को लगे ना लगे, लेकिन हमको महसूस होता है कि अभी वक्त है कुछ ऐसी आवाज़ उठाने का जो आर्टिस्ट से उठा सकते हैं। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से। संसद तक पिछले 27 साल से हम इसकी कोशिश कर रहे हैं।
And how many plays you people have done till now? इसका काउंट बताना थोड़ा मुश्किल है। अंदाज़न मैं इससे अंदाजा देता हूँ मैं। कोविड-19 शुरू हुआ 2020 में। बिल्कुल 2020 से 2 साल हुए। 2 साल हुए। राइट। इन 2 साल में सर ने 80 नाटक लिख दिए हैं। 80 नाटक दिए, लेकिन वो सारे हो नहीं पाएंगे। 2 साल में ही हो गए। हाँ, ये 80 छोटे बड़े नाटक मिला के 80 कर दिए। बिल्कुल। अब इससे पहले अगर हम जाएंगे तो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने प्रोडक्शंस, अगर परफॉर्म प्रोडक्शंस जो हुए हैं, हाँ, वो तकरीबन कितने 1000 के ऊपर हो चुके होंगे। ओह माय गॉड, ज्यादा। ओह माय गॉड, मतलब प्रोडक्शन छोटे बड़े सोलोज मिला के बहुत सारा। So it's an institution in itself. Some subject, huh? You can say that, right? It's a platform. I've said it in the right way. Space for alternative space for inquiries, artistic inquiries. एक मेथड है हमारा, राइट, प्रोसेस है जहाँ पे हम सबको मौका देते हैं अपनी बात रखने के लिए, चाहे जूनियर से जूनियर एक्टिविस्ट क्यों ना हो और सीनियर एक्टिविस्ट, दे ऑल ब्रिंग देयर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ द टेबल एंड वी डिस्कस, डिसाइड, और एक प्रोसेस के थ्रू, मेथड के थ्रू हमारा काम होता है। तो आपके साथ कोई अगर जुड़ना चाहे, आपके समसप्तक के साथ कोई अगर जुड़ना चाहे, ऑब्वियसली ऑडियंस आर लिसनिंग एंड दे हैव बीन देयर ओन क्वेरीज, अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? मैं बता देता हूँ, इधर आइए, बिल्कुल इधर आइए। ये रास्ता सीधा चला जाता है, वो उधर जाता है सीआर पार्क के 2 नंबर मार्केट से घूम के इधर आएगा। बिल्कुल। आपके सीढ़ी 5 सीढ़ी यहाँ से चढ़ेंगे और 10 सीढ़ी नीचे उतरना है। आ जाइए, वो आप हमारे पास हैं। Okay, and like if they want to participate, suppose if they are artists, visual artists, or they are from the theatre background and they want to be part of your, anyone, a poet, a singer, anyone, वही चीज़ आप अपना बताइए ओपनली कि आप उनको किस तरह से वेलकम करना चाहेंगे, क्या वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू? बिल्कुल, ईमेल के थ्रू। हमारा ईमेल आईडी है sansaptak.theatre @gmail.com। वहाँ पे आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स आपको पोस्टर में है, बैनर में है, we'll attach it definitely। आप हमको और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा इसको। जी बिल्कुल। और आप बस ईमेल करें, हमको फोन करें और आ जाइए, दरवाजे सब समय, हर समय खुले हैं। वाओ। Even if you're not an artist. Okay, yeah, please. Even if you're not an artist, it's not a problem. Okay. It's not an issue, because we need human beings, right? Not just artists. Right. Thank you so much, Anjan. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I'll be entering their studio space. It's in the basement. ज़्यादातर जाने जाते हैं थिएटर के लिए, सो और चरित्र को एक सशक्त रूप देने के लिए मुझे कुछ इतिहास की किताबों को छानबीन करनी पड़ी। उस समय के जो सशक्त विप्लवी थे, उनके बारे में मुझे जानना पड़ा, और तब कहीं जाके मैं साहस कर पाई कि मैं मेरा चरित्र को पूरी तरह से निभा पाऊं। और मुझे लगता है आज मेरे शायद जिसकी मौत नहीं चाहता, शायद मुक्ति के खोज में भटक रहा हूँ जीवन भर, शायद तुम स्वाधीनता की इच्छा के साथ लिया। मैं नहीं जानता श्रेणी द्वंद में कितने आक्रोश, कितने खून की जरूरत है, नहीं जानता। इंसान के दुख, गरीबी, ग्लानि ने मुझे भी थोड़ी बना दी। मेरी मंजिल की राह कौन सी है जिससे इस दुख, गरीबी, ग्लानि को मिटा सकूं, मैं नहीं जानता, सच नहीं जानता। So one of the most bullying. You don't need to. I believe to be a specific to be my soul enemy. And I will keep on my master reform until the day would find walls of pure unmasked comes crashing down. Now that is not a play for me. It is rather a problem. Why? Because first of all, it is a highly successful play, done so many times.
The problem is its success. If you have to do it again, you eventually follow the same pattern to get the success of the play. And that is the problem. To save myself from that, what I did was to rip it off from its narrative. I thought to capture or attack the play with its inner content. Mostly which is based on violence, terror, guilt. All these human conditions are so intricately knitted in these characters, which makes this play just not a play, a record of human conditions, a record of human psychophysical behavior. एरा प्रेम का असली प्रेम इसे कितने उदाहरण होते हैं। हाँ, उदाहरण और उपमा होते हैं। प्रेम तभी संभव है जब फ्रेंडशिप बैठे बंदों की रो। I'm here at Sun Saptak Studio Agon, and it's in Sia Park. And as you can see, preparations are going on, and this is Blackorama. তুমি থেকো ঠিক আছে তুমি কাজ আসবে ফিরে না তুই একটু আগে আরম্ভ হয়ে যাবে থাকো আমি কথা বলি এটা হচ্ছে আমাদের অন্য পার্ট আপনি यहाँ পড়াশোনা করেন তাহলে পুরো আছে তাহলে ওয়ার্কশপ করানো হচ্ছিল ঠিক আছে আজকাল দুটো হচ্ছে দুবার করা বিকেলবেলা প্রতিদিন চারটার সময় না এইটা আগে একটা হয় সুন্দর প্রোগ্রাম হয় এই দুটো রুমা আর এগুলো হচ্ছে বাকি আমাদের নন আর্টিস্ট অ্যাক্টিভিটিস হ্যাঁ ইনভলভমেন্টটা খুব কম ইনভলভমেন্ট আর এদিকে আমি এগুলো আমাকে হ্যাঁ নবস্বর ও বারাঙ্গনা এগুলো হচ্ছে নবস্বর ও বারাঙ্গনার ছবি আর ঘটনাটা নামটা কি কতদিন করতে হবে করা যাবে কানেক্টেড আছে এগুলো হচ্ছে এরই একটা যখন রিসার্চ হতো একটু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট লাগানো হচ্ছে হ্যাঁ এই স্টুডিও নতুন স্টুডিও এটা এটা আগে আসিস আচ্ছা এগুলো এসেছিস এখানে এসেছেও তখন পেট ফেট ছিল আচ্ছা এগুলো পরে করা হচ্ছে তাহলে রেগুলার শিবুয়ের পারফরমেন্সটা দেখতে এসেছিল কিন্নরি ফিন্নরি পারভেসিভ যখন হচ্ছিল তখন এখন তো ফেস্টিভ্যালটার জন্য একটা নতুন করে করা হলো এই করোনার পরই প্রথম আমরা ঘুরলাম এটা এখন করা হয়েছে আরো হবে ফেস্টিভ্যাল করার কথা ভাবা হচ্ছে একদিন তোরা একটা কবিতা নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করে তোর মেয়ে ভালো আছে হ্যাঁ তুই মাঝখানে বলছিস
সত্যিকার সত্যিকার বলি আরে অঞ্জনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তো না দেখা হয়নি সময় এই যে মোলা নিয়ে এসছে সেটা দেখা হয়ে যাচ্ছে ভালো লাগছে ডিসপ্লে ভালো হয়েছে না আসলে একটু ব্যস্ত হয়ে গেলাম 7টার সময় পারফরমেন্স আছে না তো সমস্ত একদম আচ্ছা তো প্রিভিয়াসলি বলি এটা অনগোয়িং এটা জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এটা বুঝিস তো কালমিনেটিং একটা হচ্ছে তারপরে এক্সিবিশনটা থাকবে তারপরে অন্যান্য নাটক আছে এভরিডে হয়তো এরা ভেবে নেবে যে একটা কিছু প্রোগ্রাম করলো অ্যানাউন্স করে দেবে আমার জানুয়ারি 15 তারিখ পর্যন্ত এক্সিবিশন আছে হ্যাঁ তারপরে আর এটা এরপরে মাঝখানে প্রতি সপ্তাহে একটা একটা অনুষ্ঠান চলে জড়িত বোধহয় বলেনি ওনার কিছু ছবি নিয়ে একটা সংখ্যা করা হয়েছে একটা ছোট সংখ্যা কি ম্যাগাজিনে ওই ওদের অনলাইন যদি চান তো ওটা নিয়ে আলোচনা সন্ত্রাসের নাম দিয়েছিলেন ধর্মের সন্ত্রাস হ্যাঁ ধর্মের সন্ত্রাস ঠিক আছে আমি আজকে আসছি আর দেখবে না না আমাদের কখনো দেখতে হবে শুধু আমি বলেছিলাম আমি যাবোই যাবো এটা না ঠিক আছে আসি আবার হ্যাঁ তুই কি করে রেলগাড়ি ঠিক আছে ওখান থেকে মেট্রো নিয়ে শুরু ভালো থাকি হ্যাঁ তো বেটা বলি আছে কি তো বলি যে তোর বেটা সব সব ঘুরতে থাকে বুঝিয়ে একটু বড় হয়ে গেছে না নাইন করে বাবা সাবধানে যা ঠিক আছে যোগাযোগ রাখিস ও আসছে আমার তুই আজকে ঠিক জায়গায় বসেছিস কেন বলতো ওখানে মুখে আলো পড়ে 5টা বাইট না কালকে কিন্তু পড়েনি কালকে ওরা সরিয়ে দিয়েছিল এটা আচ্ছা আজকে সময় এরকম রাখছিস এরকম আজকে এটা প্রথম নাটক তারপরে কোনটা আজকে নবশ্বর বারাঙ্গনা আচ্ছা তারপরে এটা বলে আচ্ছা ওদিকে হলো এদিকে তোর মা আর হেলমেটও তো পড়ছে আবার এনেছো রানাদা অয়েল ভেতরে রয়েছে ওখানে ও আসলে ওকে দিয়ে দিল ঠিক বলো ইউরামা তুই আগেই ওই করে সিনেরি বলে বলে এখানে চলে আমরা আমাদের জায়গায় করছি 96 নম্বর 1 নম্বর 2 ভালো খুব সুন্দর আরে আগে কি ইন্টারেস্টিং হয়েছে তিনজন ছিল তো একদম মানে মডারেটার সে কথা বলছে তাতে ভালো হয় হ্যাঁ চলে যাচ্ছে এখান দিয়ে বার করবো হাতে ধরে আছে রবি বস্তু কি করছো ওই খানাটা আচ্ছা নাটকদের দুটো লিস্ট না ভূত হয়ে যায় অরিন্দম কখন ফিরলি আজকে স্যার আমি 11টা কোথায় না বাড়িতে না বাড়িতেই নেমেছিলাম বাড়িতে গাড়ি পেয়েছিলাম আচ্ছা আমি দেখিয়েছি সকালে বেরিয়ে গেছে জলের বোতল না অফিসে গেছি স্যার অফিসে আমি ওই ক্যাব নিয়েছিলাম আমার কাকুটাও নিয়ে নিচ্ছে আমাদের একটা মেন ঠিক আছে আমি রাখবো ওটা তাও আমের ফোর্ট আছে না আমের ফোর্টের আমের ফোর্টের দিকে অক্সফোর্ডে ওরা নিজের এসে গেল না
Yeah, hello sir, Torit sir, ma'am. Hello. I'll be talking about your organization, like this group. So कौन पहले शुरू करना चाहेंगे बताइए. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रूमा क्या करिए प्लीज़ मैम पहले आप अपने आप को प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए. माय इंट्रोडक्शन अच्छा मेरा नाम रूमा बोस ओके. मैं संक्षिप्तक के साथ दिल्ली बेस्ड हूँ एक्चुअली यहीं पर ही पली बड़ी यहीं पर ही सब कुछ और उसके बाद नाटकों के साथ मेरा बहुत पहले से परिचय था. ओके. बांग्ला नाटक प्रैक्टिकली ओके. जात्राज एंड हिंदी नाटकों में भी मैंने किया. संक्षिप्तक का गठन 1992 में हुआ. विशेष कुछ उद्देश्य को लेकर. वो था दिल्ली में बांग्ला नाटक का अलग परिचय. ओके. क्योंकि हमारे स्वाधीनता पाने के बाद जो दिल्ली में बंगाली लोग कलकत्ता से और जगह से आके बसे तो उनके लिए कल्चरल एवेन्यूज था. लेगेसी जो वो पश्चिम बंगाल से ही कैरी करके आ रहे थे. तो दिल्ली के मिट्टी का, दिल्ली के रहन सहन का, दिल्ली के भाषा का, स्ट्रगल का छवि जो है वो उतर के नहीं आ पा रहा था. ओके. उस समय काफ़ी दिल्ली में नाटक के काफ़ी ग्रुप थे. इवन ग्रुप्स में कंपटीशंस भी होते थे. लेकिन सभी नाटक कोलकाता के जो लेखक हैं, नाटककार हैं, उनके लिखे हुए नाटक ही यहाँ हुआ करते थे. तो तरित वगैरह भी उन्हीं नाटकों के ग्रुप से जुड़े थे, हम भी जुड़े थे. तो हमें नाटक करने के लिए बोला जाता था, हम करते थे. एक अच्छा लगने वाली एक बात थी कि इसमें और कोई सोच विचार नहीं था. ओके. लेकिन ये थक चुके थे कुछ लोग और सोच रहे थे कि कुछ करें जिससे हम सही में थिएटर किस लिए हम कर रहे हैं उसका एक परिचय मिले. ओके. तो तब 1992 में दीपंकर खान, देवाशीष दा, तोरित मित्रा, तुषार मित्रा एंड फ्यू मोर, प्रणब, इन लोगों ने, गौतम सेनगुप्ता, इन लोगों ने मिलके सोचा कि हम अपना एक नाटक का ऐसा ग्रुप बनाएं कि ताकि हम कह सके कि हम यही नाटक हम करेंगे. और क्योंकि तोरित लिखते थे, सबको पता था, तो उनको ये दायित्व दिया गया कि तुम हमारे लिए नाटक लिखोगे. तो वो 1992 13 जुलाई को ये संक्षिप्तक नाटक का गठन हुआ, नामकरण हुआ और उसी दिन सब कुछ तय हो गया कि हम लोग किस तरह से नाटक करेंगे, क्या उसका उद्देश्य होगा नाटकों का और किन को लेके हम कर पाएंगे. ओके. छोटे से ग्रुप में स्टार्ट हुआ. उसके बाद 1992 में ही शायद एक साल के अंदर ही 2-3 प्रोडक्शंस हो गए. मैम इनिशियली कितने मेंबर्स थे आपके पास? 10 मेंबर होंगे. ओके. ओवरऑल जिन्होंने ज्वाइन किया एज ए मेंबर ज्वाइन किया और वही लोग नाटक भी कर रहे थे. उन्होंने ही सभी नाटकों में अपना अभिनय किया. और 1993 में उसके बाद मेरा जब यहाँ संक्षिप्तक में मैंने जब ज्वाइन किया और तब से लगातार आज 2021 दिसंबर लगातार वही लेगेसी हम कैरी कर रहे हैं. उसी थॉट प्रोसेस से, उसी उद्देश्य से कम से कम तोरित के ही लिखे हुए 60 के करीब नाटक, छोटे बड़े, एकल और फुल लेंथ ड्रामाज और भी विधाओं में हमने काम किया है. बड़े बड़े सेमिनार्स किए और ग्रुप्स के साथ हमने फेस्टिवल किया. पब्लिकेशंस हैं हमारे. हम अपना जॉबन पॉट हमारा खुद का एक न्यूज़लेटर है जो कि हर साल एक कम से कम कोशिश करते हैं उसमें निकालने की. खुद भी लिखते हैं. जो भी बाहर हम जुड़ना चाहते हैं इसके साथ, एनी आर्ट प्रैक्टिशनर जुड़ना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज, कहीं से भी, किसी भी प्रांत से, किसी भी प्रांत से, उसका कोई वो नहीं है. कोई बैरियर हमने संक्षिप्तक में रखा ही नहीं है कि कौन जुड़ेगा. हाँ, थोड़ा सा ये है कि जिस काम के लिए वो जुड़ रहे हैं उस काम से उनको लगाव हो, प्यार हो. ये नहीं कि आज शाम को कुछ भी करने को मन नहीं है, चलो जी नाटक करें, ऐसा नहीं.
मतलब कम से कम कुछ सोच लेकर वो लोग आए, जुड़े, और वो जब जुड़ते हैं शायद वो सोच के नहीं आते हैं, लेकिन वो जुड़ जाते हैं। उसके पीछे एक ही कारण है कि उन लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ है जो हम खुद को ढूंढ पाते हैं। क्योंकि मैं अपनी तरफ से इस बात को कहूँगी कि अपना एक जो ग्रोथ है जी, वो ज़रूर इस संक्षिप्तक के साथ जुड़ के ज़रूर मिलता होगा, सबको ही मिलता होगा। क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी बच्चे आए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सबकी अपनी समस्याएं हैं, सबके अपने दायरे हैं जी, और सब 24 घंटे नहीं जुड़ पाते हैं। तो कुछ लोग आए चले गए, लेकिन वो मुझे लगता है कि उस लेगेसी को कैरी करके ही गए हैं, क्योंकि उसी चीज़ को लेके, उसी सोच को लेके वो काम कर रहे हैं। कोई सिनेमा में है, कोई थिएटर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, कोई आर्टिस्ट है, पेंटर हैं। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम संक्षिप्तक जब तक जीवित रहेगा तब तक इसी तरह से आगे जारी रखेंगे। और इसके अलावा तो जो ये आज ब्लैकोरामा हो रहा है जी, उसका एक फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम एक सीरियसली होता है हम लोगों का जी। तो यही मैं कह सकती हूँ बस। थैंक यू मैम। तोरित सर, आपसे सवाल है, आप अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं? एज एन आर्टिस्ट, एज ए प्ले राइट, थिएटर एक्टिविस्ट, किस तरह से? नमस्कार, मैं तोरित मित्रा। डिपार्टमेंट या कंपार्टमेंट वाइज अपने आप को डिवाइड करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं वास्तविक मैं अपना चरित्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कुछ थोड़ा सा फिकल माइंडेड हूँ, जिसे कहते हैं। चपल स्वभाव का तो हूँ नहीं, लेकिन स्थिर नहीं हूँ जी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैं फोकस नहीं हूँ। किसी भी काम में अगर मेरा फोकसिंग जो है ये शुरू हो जाए तो मैं एक पागलपन, एक जुनून तो है मेरे अंदर। ये मैं आज 65 साल की उम्र में आके मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर एक पागलपन है जी। मैं अभी भी, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, शारीरिक तौर से अगर देखा जाए तो मैं काफ़ी ख़राब हालत में हूँ, लेकिन 15-16 घंटा अभी भी मैं काम करता हूँ, उस जुनून की वजह से। हाँ, जुनून की वजह से। और ये पिछले 2 साल में मैं कम से कम 80 छोटे छोटे नाटक मैंने लिखे हैं, और विद इन दिस पैंडेमिक पीरियड में। और सब्जेक्ट यही था कि ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस, वी आर, वेयर वी आर गोइंग, हाँ, ये वाला चीज़ तो था। और ये नाटक में भी मेरा यही आया है। और पिछले 2 साल में मैं कम से कम 1535 पेंटिंग मैं कर चुका हूँ, ड्राई कलर्स में, नॉट ऑफ कोर्स नॉट कैनवास, पेपर में ड्राइंग भी किया है मैंने काफ़ी सारे। तो मैं अपने आप को, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ, तो लेकिन मैं ये भी नहीं, इतना हम्बल भी नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि मास्टर ऑफ नॉन, ये भी नहीं कहूँगा। तो कहीं ना कहीं मास्टरी तो मेरा है जी, बिल्कुल। तो मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ ज़िंदगी में खाली एक ही जगह, इधर मेरा स्टडी रूम में या मेरा ड्राइंग बोर्ड के सामने, या मैं लिखता हूँ या ड्राइंग करता हूँ। बाकी चीज़ों में मेरे अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोग कहते हैं कि सिविलाइज नहीं है ये इंसान। मेरे घर में जो मेरे बहुत क्लोज रहने वाले लोग हैं वो भी मुझसे नाराज़ ही रहते हैं। अभी भी आज ही बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को छुटकारा मुझे मिला, मैं भाग के आया हूँ यहाँ पे। सो यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सिविलाइज्ड। यस। सो क्योंकि मेरा अंदर प्रॉब्लम, एक बहुत प्रॉब्लम है। आई एम ए प्रॉब्लम चाइल्ड हूँ, मैं रनवे चाइल्ड हूँ, घर से भागने वाला इंसान हूँ, बहुत बार भाग भी चुका हूँ मैं। पापा मुझसे बात करना बंद कर दिया था, मेरे पिताजी बात करना बंद कर दिया था। मेरा माँ का सहारा बहुत था, तो मैं बच गया हूँ, नहीं तो मुश्किल था, घर से निकाल ही देते। और सबको मालूम है, मेरे ग्रुप के सबको मालूम है, लेकिन मेरा ग्रुप में मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे ग्रुप में सभी मेरे जैसे हैं, तो यहाँ पे पता नहीं चलता, कलर अलग है। तो एक ही ट्रांसपेरेंसी है हमारे अंदर। तो इसलिए मैं ड्राइंग भी करता हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ। शुरू हुआ था मेरा लिटरेचर के फील्ड में कविता से, इसलिए भी कि कविता लिखने के लिए ना कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बांग्ला आता है, और क्योंकि जिसे कहते हैं ना, हाफ सोल खा गया था प्यार के मुझ में। मुझे लगा मैं किसी को भी, किसी लड़की के साथ बात करने जाता था, वो तो मुझे मना कर देता था, तो वो नाराज़गी रोमांटिक फॉर्म में चेंज होता था और मैं लिखता था। एक that was your inspiration? हाँ, हाँ। और मुझे, लेकिन जिनके लिए लिखता था उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा।
कभी भी वो मेरा कविता नहीं उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता था एक दिन उनको पता चलेगा, फिर उनको मज़ा आ जाएगा, फिर वो कहेंगे अच्छा इतना बड़ा कवि जो है वो उस ज़माने में ऐसा लिखता था हमारे लिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता भी नहीं है तो कोई आता भी नहीं है उस टाइम। लेकिन मेरा लिटरेचर का जो मेरा मोह जो है वो अभ्यास पे पलट गया। ओके। कॉलेज में जब मैं आया, कॉलेज में सर कॉलेज आपने दिल्ली से किया? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, आपका ही कॉलेज। अच्छा कॉलेज, अच्छा कॉलेज ऑफ दिल्ली। वो रायसेन स्कूल का ही हूँ मैं। अच्छा रायसेन, ओके। से हूँ, क्लास 8 से ही मेरा सिगरेट विगरेट पीना शुरू हो गया था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जी रीगल के सामने, आप तो रायसेना को आपको पता होगा, रीगल के सामने जी वो एक बुक वेंडर बैठता था किताब लेके, पुराने किताब। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से मुझे एक कवर, फटा हुआ कवर का एक किताब मिला मुझे। मैं खड़े खड़े पढ़ ही रहा था, मुझे लगा ये किताब हाथ से जाना नहीं चाहिए। मैंने उससे पूछा, उसने मुझसे उस टाइम उसने मुझे 20 रुपये मांगे थे, मैंने उसको 15 रुपये में रफा दफा कर दिया था। ओके। और वो किताब राइट मेरा जिंदगी का सारा कुछ चेंज कर दिया। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन यू वाज इन कॉलेज? आई वाज इन कॉलेज 1973। ओके। जुलाई का महीना था। फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज से हम सबने कहा कि चलो कॉफ़ी हाउस जाते हैं। सीनियर थे, रायसेन स्कूल के सीनियर थे। ओके। और हमें ये एक मिथ था कि आर्ट कॉलेज के बच्चे मोहन सिंह पैलेस के कॉफ़ी हाउस में जाके बैठेंगे, तो हम चले भी गए। और वापस आते हुए किताब मैंने खरीदा जी। उस किताब ने मेरा जिंदगी का सारा कुछ चेंज कर दिया। किस तरह सर? वो किताब का नाम था एल्बert कैमू का द आउटसाइडर। ओके राइट। आउटसाइडर ने मुझे इंसान का फ्रिजाइल, इंसान इज ए वेरी वेरी फ्रिजाइल, उसका एग्जिस्टेंस, उसका क्राइसिस जो है, उसका क्राइसिस जो है वो खुद ओवरकम वो कर नहीं सकता। रादर वो और भी क्राइसिस के अंदर वो फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, अपने आप में ट्रैप्ड होता है। राइट। उसके पास कुछ नहीं रहता है एक्सेप्ट सुसाइडिकल। और बाद में इस कैमू ने मुझे बताया कि सुसाइड इज एन अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ मैनकाइंड। मिथ ऑफ सिसिफस में यही था, ठीक है, रेबेल में भी यही है, यूथफुल राइटिंग में भी यही है जी। तो मैं वो किताब पढ़ने के बाद अगेन ए जुवेनाइल एटीट्यूड मेरा शुरू से भी था। अभी भी लोग मुझे कहते हैं कि सब तो बड़े नहीं होते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं, सारे वैसे ही रह गए। ये रोमांटिक एक भावना मुझे काफ़ी चेस करता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये ऐसा कुछ लिख दूं तो रातों रात सुबह उठ के जब मैं बरामदे में के खड़ा हो जाऊंगा, आसमान पिंक कलर का हो जाएगा, हाँ सुनहरा दिन हो जाएगा। मतलब ये कोई भी लड़कियों को कोई छेड़खानी नहीं करेगी, कोई रेप नहीं होगा, जिंदगी पलट जाएगा। एक यूटोपियन राइट, बट दैट यूटोपियन थ्रू द डार्क साइड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, राइट? ओके राइट। एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली मैं स्टोरीज में वापस आऊँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते कुछ मैगजीन्स में अब थोड़ा सा फेम भी आना शुरू हुआ। मुझे लगा ये आसान है, ज़िंदगी में फर्स्ट बॉय होने से अच्छा तो यही है कि राइटर बन जाओ, लोग उसको जल्दी पहचान। फर्स्ट बॉय को कोई पहचानता नहीं है तो मैं स्पॉइल चाइल्ड, स्पॉइल ब्रैट, घर भागने वाला, गांजा खाने वाला, मैंड्रिक्स लेने वाला, हाइड्रिक्स लेने वाला लड़का था मैं। तो मैं, किसी ने मुझे कहा, सीनियर एक्टर ऑफ दिल्ली, उन्होंने कहा कि तू इतना अच्छा स्टोरी लिखता है, तू वो तेरा स्टोरी का फॉर्म जो है वो नाटक जैसा है, तू एक नाटक लिख। ओके। तो ये नाटक लिखने से पहले ही मैं एक ग्रुप में काम किया करता था, वहाँ पे मैं छोटे मोटे रोल भी करता था, लेकिन एक्टिंग में इतना शौक या नहीं था मैं, क्योंकि मुझे लगता था वो हमें बहुत काफ़ी डिसिप्लिन देना पड़ता है, ये नहीं करो वो नहीं करो और मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में जाती सबसे पहले मैंने दाढ़ी बना लिया था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था दाढ़ी नहीं बनाएगा तो लंबे बाल नहीं होगा तो तू आर्टिस्ट नहीं लगेगा। तो हम सब पहले ही जाकर वैन गॉग बन जाते थे, उसके बाद आर्टिस्ट बनते थे, ठीक है ना। तो मैं नाटक करता नहीं था, स्टेज में आना मुझे पसंद नहीं था जी। सेट बनाता था, पोस्टर वोस्टर बनाना या छोटे मोटे काम। तो एक दिन मेरा जो डायरेक्टर थे उस ज़माने में, काफ़ी फेमस थे वो, उन्होंने मुझे कहा कि एक किताब मिला है मुझे, उसका पहला 16 पेजेस है, पीछे वाला पेजेस नहीं है, लेकिन नाटक 16 पेज तक मुझे पढ़ के मुझे लगा कि अच्छा होगा ये, और तू तो लिखता रहता है स्टोरी वोरी, तू देख तू कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे काफ़ी उससे दिया, तू देख कोशिश कर। तो मैंने नेक्स्ट 19 या 16 ऐसा कुछ पेजेस मैंने लिख दिया था। ओके। और ये कॉलेज के दौरान ही हुआ? कॉलेज के दौरान ही। ओके। ठीक है। तो और वो जब नाटक हो रहा था
तो जो सीनियर मेंबर्स थे इंक्लूडिंग माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर, उनको लगा था क्या बेकार लिखा है, शुरू में दूसरा ढंग का स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसके बाद टेक्सचर चेंज हो रहा है, ये कैसा लिखा है, ये क्या होगा। लेकिन वो नाटक कर दिया उन्होंने क्योंकि नाम भेज दिया था, कंपटीशन था, नाम भेज दिया गया, करना ही पड़ेगा, तो कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए फॉर्चुनेट, डायरेक्टर के लिए जो था वो अनफॉर्चुनेट था, उसे प्राइज मिल गया। वो प्राइज दीपंकर खान को मिला बेस्ट एक्टर, वो डायरेक्टर उनको शायद सेकंड बेस्ट डायरेक्शन मिला था, और प्रोडक्शन सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन, ऐसा कुछ मिल गया था। अब मुझे फिर थोड़ा सा एक अजीब किस्म का एक फीलिंग, एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग हुआ। मुझे समझ ही नहीं आया पहला 16 पेजेस के लिए प्राइज मिला या बाद का 19 पेजेस के लिए प्राइज मिला। देन आई टुक दिस थिंग एज ए चैलेंज। उसके बाद मैंने एक नाटक लिखा कॉलेज डेज में। और वो नाटक, अभी रुमा जी ने जो कहा कि दूसरा उद्देश्य पर जो बात कर रही थी जी, वो नाटक दिल्ली का फर्स्ट ऐसा एक नाटक जिसमें ना कोई मूवमेंट है, ना कोई बॉडी लैंग्वेज है। एक लड़का वो अपना माँ से आके पूछ रहा है मेरा कसूर क्या था कि आप मुझे छोड़ के, फादर के साथ आपका अनमनी सी थी, आप छोड़ के चले आ गए, नो प्रॉब्लम, आप मुझको क्यों छोड़ के आ गए, मुझे बताया तक नहीं आपने। और पापा भी किस टाइप के लोग थे जो उन्होंने भी मुझे ऑलवेज ये कहते रहे कि तुम्हारा माँ की वजह से मैं तुम्हें कैरी कर रहा हूँ। वो शुरू हुआ मेरा मूवमेंट थिएटर को लेके, और उसके बीच में मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन ही किया करता था। एग्जीबिशन के साथ अपना पेंटिंग के अलावा कुछ जानता भी नहीं था। फिर मैंने ये छोड़ छाड़ के अगेन संसद थिएटर में मैं लौट आया हूँ। लेकिन शर्त मैंने दे दिया था सबको, रुमा जी भी जानती हैं, मेरे बाकी फ्रेंड्स लोग को भी, कि मैं थिएटर करूँगा तो अपना एक आइडियोलॉजिकल बेस होगा। आइडियोलॉजिकल कहती लोग ना लेफ्ट राइट समझते रहते हैं, वो नहीं, ओनली थिएटर, ओनली आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं, आर्ट फॉर आर्ट सेक में मैं विश्वास ही नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा अपना वॉइस, तुम्हारा अपना डिक्शन, तुम अपनी इमेज अगर नहीं बना रहे हो, इमेजरीज नहीं बना रहे हो, मेटाफॉर नहीं ढूंढ के निकाल रहे हो, एक डिस्कवरीज नहीं हो रहे हो, अगर तुम्हें हिस्टोरिकल एविडेंसेस तुम बता नहीं रहे हो, एंथ्रोपोलॉजिकल लेगेसी जो है ह्यूमन का वो नहीं तुम समझ रहे हो, मैं ऑलवेज समझता हूँ कि थिएटर में, ये डार्क थिएटर का जो इम्प्रेशन मेरे पास है, इंस्पायर हूँ, यही है इंसान का एक पर्सनल, वेरी पर्सनल एक एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एक आर्कियोलॉजिकल एक रिलेशंस है। मैं अपने आप को खोद खाद के मैं अपना अंदर का मोहनजोदड़ो निकालता हूँ, वो कब का बना हुआ था वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अपना फादर के पास से सुनता था कि हम ईस्ट बंगाल के हैं, मतलब जो बांग्लादेश के हैं, जो आज बांग्लादेश कहते हैं। हाँ, तो उस टाइम के सब लोग कहते कि हमारे पास ना ये बगीचे हुए करते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे। तो मैंने एक दिन कहा कि इतना बगीचा, इतना जमीन अगर सबका हो तो सारा दुनिया ही ईस्ट बंगाल का है, इतना बड़ा होगा कहाँ से। तो मुझे शक होता था और मुझे लगता था कि सारे लोग ही झूठ बोलते हैं, मेरे पापा भी झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि मेरे पापा भी कहते कि मैं तैर के जाया करता था स्कूल में। तो सभी इतना तैरते थे, तो वो तो स्विमर बन सकते थे, वो स्विमर नहीं बने, वो गवर्नमेंट ऑफिस के उन्होंने क्लर्क बन गए। मुझे उन्होंने डांट के कहा था कि तुम्हारे उम्र में मैं ये क्या करता था, वो क्या करता था। मैंने कहा कि आपकी उम्र में तो नेपोलियन ने पता नहीं क्या क्या कर दिया था। तो ये सब नाराजगी था उनके अंदर। मैंने कहा कि वी द पीपल, वी द सॉन्ग सकता हूँ फ्रॉम दिल्ली, हम दिल्ली से आए, अगर कोलकाता से भी कोई आएगा तो हमें ना कोलकाता, मतलब मैं एक मजाक में कहता था कि कोलकाता में बारिश, दिल्ली में छतरी खोल के बंगाली बैठ जाते हैं। ये भद्रलोक वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। हम अपना लैंग्वेज बोलेंगे, हमारा लैंग्वेज का जो एमलगमेशन होगा वो प्योर शांतिनिकेतन रविंद्रनाथ के बांग्ला होगा नहीं। हम अपने बांग्ला में बोलेंगे, लेकिन वो हमारा बांग्ला का जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो हम डिसाइड करेंगे कैसा होगा। आपने एक नया आइडेंटिटी दिया, और मैं खाली इसी में खुश हूँ कि मेरा ये नया आइडेंटिटी मानोश, ये शोमेन, कोलकाता के लोग भी मुझे इसी हिसाब से जानते हैं कि दिल्ली का नाटककार त्वरित मित्र, ये बिल्कुल ये जानते हैं, राइट, दिल्ली का नाटककार। और दिल्ली के नाटक के लोग हैं, वो कहते हैं यार दादा तुम तो कोलकाता के हो, लेकिन तुम्हारे नाटक में तो कोलकाता का कुछ है ही नहीं। तो मेरा मतलब शोमेन, मेरा कहने का मतलब ये है जी, मैं कोशिश किया करता था, मैं अपना, और ये भी एक साइकोलॉजिकली फ्रॉइडियन उसमें अगर देखा जाए कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ही हुआ था। मुझे कहीं पे लोग
देते नहीं थे भाव, और मुझे लग रहा कि मुझे भाव मिलना चाहिए, तो मैं क्या भाव मिलने का रास्ता ढूंढ के निकाला। पहले निकाला कविता, उसके बाद निकाला पेंटिंग। अब थिएटर में मुझे इस बूढ़ा टाइम में आके मुझे थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा है, लेकिन जिसके लिए करता था वो नहीं मिला। किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाया, यही बात मैं कहूँगा। But theater for me is a new language for me. I'm trying to achieve the new language for a very very peculiar Delhi Bengali theater. लेकिन by chance मेरे स्टूडेंट्स लोग इतने काबिल है ना, मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल है, उनका हिंदी नाटक मुझे रातों रात मैजिकल उसमें मेरे ग्रुप को और हमें सबको एक दिल्ली नाटक का भी पोजीशन में हमें डाल दिया। एक्चुअली हमारे नाटक जब दिल्ली के दर्शक मतलब नॉन बंगालीज जब देखने लगे, हमारे तो बहुत ऐसे दोस्त हैं जो जहाँ हम काम करते हैं, जिनसे हमारा परिचय है, तो वो आते थे, हमारे कहने पर वो आते थे और नाटक देखते थे। और देख के कईयों ने बोला कि अरे आपके नाटक की जो इंटेंसिटी है वो अभिनय से तो पता चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लैंग्वेज में हम लोग वो हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, और हम वो मज़ा नहीं ले पाते हैं जो नाटक में होना चाहिए एक दर्शक की तरह। तो आप लोग अपने आपके नाटकों के अभिनय से या उससे ही पता चलता है, डिलीवरी से ही पता चलता है कि बहुत इंटेंस प्लेज है। तो खासकर जब वो हम लोगों ने उपोषोल्लो नाटक जो किया था, हरी भरी ख्वाहिश, हाँ नहीं बांग्ला में वो उपोषोल्लो नाम था। तो उसके बाद ये हुआ कि तो मैंने ही बोला तोरित को कि तोरित क्यों नहीं हम ट्राई करते हैं हिंदी में। तो देखे ना अगर ट्रांसलेशन हम इसका करके कर सके। तो हमारे ग्रुप के ही मेंबर्स ने, स्टूडेंट्स ने, श्रीमोई, अंजोन, इन लोगों ने बोला कि हम करेंगे ट्रांसलेशन और करके दिखा दिया। इसमें मैं रुमा को थोड़ा सा रोक रहा हूँ। ये सोमेन आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दो कल्चरल क्लैश, हमने इंटर कल्चरल क्लैश दिखाया मैंने। एक बंगाली जो गोविंदपुरी में रहते हैं, जिनका सोशियो सर्कल, पॉलिटिकल सर्कल जो है वो टोटो चलाना, ऑटो चलाना, मच्छी बेचना, घर में काम करना, वो बंगाली भाषा उनका बांग्ला, लेकिन सीआर पार्क में उनका एक कल्चरल, उनका जो प्रोफाइल है वो सीआर पार्क का प्रोफाइल के साथ तो मिक्स अप नहीं होता है। नहीं, उनको दुर्गा पूजा में कहा जाता है कि उनका दूसरे गेट के बंगाली हैं, वो दूसरे गेट से आएंगे, अंदर नहीं आएंगे। अच्छा। और यहाँ से मेरा नाटक लिखना शुरू हुआ। उपोषोल्लो मतलब कचरा घर, कूड़ा घर। वहाँ पे गोविंदपुरी में हम जाया करते थे, मैं, रूमा जी, शिमोई, अंजुन, हम जाके घूमते थे, गली गली में घूमते थे, क्योंकि मेरे अंदर कुछ पिक्यूलियर, कुछ बेकार की आदत है। मुझे ऐसा नाटक तो मैं लिख दूंगा, लेकिन गोविंदपुर का जो स्मेल है एक वो आना चाहिए। और मेरे जो स्टूडेंट लोग हैं शो में, वो मुझसे भी 2-3 कदम आगे होते थे। उन्होंने स्टेज को ऐसा डेकोरेट किया कि लोग आके चौंक गए, कहते ये स्टेज है। उन्होंने बड़ा हुआ बिल्ली भी डाल दिया उसके अंदर। ओह माय गॉड। हाँ, इस टाइप का किया था उन्होंने। वो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो ही जाता है ये सब चीज़, लेकिन वो सुपर हिट। हाँ, सुपर सेंटर में इसका शो हुआ जब, और जब हिंदी में हुआ उसमें तो मुझे श्रेष्ठ नाटककार का अवार्ड भी मिल गया ये इस चीज़ों से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नाटक लिखने के पीछे मेरा कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। एक ही क्वालिफिकेशन है, वो क्लास 11 पास, दिल्ली कॉलेज स्कूल का, दिल्ली स्कूल का क्लास 11वीं क्लास पास हो गया था। उसके बाद जब हम कॉलेज में गए, बाई चांस उस टाइम उसको डिग्री कोर्स बना दिया गया, तो मैं कहता हूँ मैं B5 बैचलर ऑफ आर्ट हूँ। तो वो कुछ बैचलर कुछ नहीं होता, मैं 11वीं पास हूँ। लेकिन मेरा जुनून ने मुझे एक अच्छा सा जॉकी बना दिया। एक ऐसा एक घोड़े पे बैठ गया हूँ जिससे उतर नहीं पा रहा हूँ मैं। ये है, मतलब शो में तुम ये मत सोचो कि मैं बड़ा बड़ा फन्नेखा हूँ। मैं खाली एक ही चीज जानता हूँ कि अपने आप से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट आई एम नॉट नार्सिसिस्ट। मैं बहुत अपने आप से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे जिंदा भी रहना चाहिए, बहुत काम होगा। अगर काम बंद कर दिया तो पता नहीं क्या तहल का मच जाएगा, नाटक खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये नार्सिसिज्म मुझे आज भी मुझको काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। आई डोंट नो उधर तुम इस चीज से खुश हो गया नहीं कि मैंने अच्छा कुछ बोला, मैं तो मजाक ही करता रहा, तो लेकिन यही मैं हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ, जैसे उसने कहा था ना कि सॉल बेलो ने, कि मुझसे मत पूछो कि मैं ऐसा क्यों नहीं लिखता हूँ, ऐसा क्यों नहीं लिखता हूँ, मैं यही लिखता हूँ और इससे ज़्यादा उम्मीद ही मत करो। ओके सर।
थैंक यू सोमेन। इससे ज़्यादा मैं बोलने के लिए बोलोगे तो आज का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तुम घर आओ, बहुत कुछ बोलूँगा तुम्हें। थैंक यू Off सो the मच, record. थैंक यू सो मच सर। शॉर्टली थोड़ा सा राहुल से पूछना चाहूँगा। राहुल, आप अपने आप को एज एन आर्टिस्ट किस तरह से यहाँ जोड़ रहे हैं और आपका इसमें क्या क्या पार्टिसिपेशन है? मैं 97 में एनएसडी गया, राइट। वहाँ जॉब करता था, तो रूमा मैम आती थी वहाँ पे। जी। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि अंजन की मदर हैं, क्योंकि आप एक ऑफिशियल काम के लिए आती थी। एक दिन क्योंकि अंजन मेरे साथ शंकर्स में हम दोनों क्लासमेट हैं, ओके। तो एक दिन अंजन ने आके मेरे को कुछ पेपर दिया आपको देने के लिए। मैं बोला हाँ मैं तो वहीं हूँ, तो मैं वो दे आऊँगा। मैं गया, देखा रूमा मैम, मैंने बोला आप अच्छा अंजन की मदर है? वो था अच्छा। वहाँ से एक छोटा सा कनेक्शन बना। फिर आपने कई बार बोला कि आने के लिए कि वो एनएसडी में इतना सारा काम होता था कि मुश्किल होती थी। जब एनएसडी छूटा जी, तब मैं शायद मैं पहले पहुंच गया था एक बार, जब वहाँ पे आपने मुझे टोका था कि राहुल आज पहले कैसे पहुंच गया, वैसे तो आता ही नहीं है। तो वहाँ से मैंने प्ले देखना शुरू किया, क्योंकि एनएसडी में रहते हुए मैं ज़्यादा प्ले नहीं देख पाया। एनएसडी से बाहर जब रहा तब मैं ज़्यादा प्ले देख पाया। ओके। मैं शिकायत नहीं कर रहा एनएसडी की, लेकिन ऐसा था वहाँ पे, जॉब उसी तरह की थी। हाँ, वो तो हर समय बिजी रहते थे। ओके। तो फिर धीरे धीरे करके फिर मुझे वो यान यात्रा का चांस मिला। फिर अंजन ने मेरे को बोला कि यान से कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि 2016 में हमने नेशनल लेवल पे वो काम किया था। ओके। ऑलमोस्ट 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो हम रनिंग में हमने काम किया था। ओके। और 2-3 महीने जी। बहुत बड़ा काम था। तो अंजन ने बोला कि व्हाई नॉट वी कैन डू दिस इन आवर थिएटर ग्रुप। राइट। फिर वो अच्छा लगा। तो 2018 में ये एक वसुंधरा, जैतु वसुंधरा करके वो प्रोग्राम इन्होंने बनाया था पूरा, ओके। जिसमें हमने यान से बहुत कुछ किया। इसमें भी हमें यान से ही करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी वो उसको जो रंग करने का जो वो होता है वो बंद कर दिया, क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है। इस वजह से हमें वो यान नहीं मिल पाए। राइट। तो वरना हम ये पूरा यान से हम ढकने वाले थे इस चीज़ को। ओके। खैर वो जो भी था, उस जो हमारे पास बंद पड़ा वो हमने किया। और तोरिदा का ही ये सब कुछ क्रिएटेड है कि ये जितने भी वर्क्स हैं आप देख रहे हैं, हाँ। 6 काम है, और उन्हीं के थॉट के ऊपर ये पूरा का पूरा ब्लैकोरामा डिजाइन किया गया है। राइट। और अंजन और श्रीमोई अंजन ये सब उसके सूत्रधार रहे हैं, है ना? राइट। तो ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके हमने चीज़ों को जुगाड़ करके यहाँ पे छोटी एग्जीबिशन की है, जिससे कि वो थोड़ा सा अलाइव हो जाए, लोगों को समझ में आए कि हम लोग भी अभी जिंदा हैं, अभी हम गए नहीं हैं। क्योंकि अधिकांश इस तरह के काम मुझे लगता नहीं है कि गैलरीज में देखने को मिलते हैं इतना इस इंटेंसिटी से। राइट। तो ये एक लाइव करने की कोशिश की। और वैसे भी इनविटेशन है, जो भी जिनको भी ये वीडियो देखते हैं या जो सोचते हैं अगर वो एग्जीबिशन देखना चाहें तो 15 जनवरी तक ये 2022 तक 22 तक ये एग्जीबिशन है। प्लेस तो खैर बहुत लिमिटेड स्पेस है, और प्रोटोकॉल की वजह से प्लेस में तो जितने मतलब कि गैप देके रखते हैं। विजुअल एग्जीबिशन विल गो ऑन। विजुअल एग्जीबिशन विल गो ऑन। तो विजुअल एग्जीबिशन के लिए आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अधिकांश जो है लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो इसमें बहुत खून पसीना लगाया है। राइट। 20-25 साल का एक्सपीरियंस भी है इसमें। बिल्कुल। तो ये हमारा एक छोटा सा वो है, सब एक ग्रुप में मिलके हमने किया है। वो वर्कशॉप के भी सर ने जो वर्कशॉप किए उसके भी अच्छा काम। और वो अनट्रेंड आर्टिस्टों ने किए हैं। हाँ। है ना? ओके। वो जो ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड मतलब कि जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। ओके। तो कई बार वो फ्रैक्शन बन जाता है ना कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए जरूरत है नहीं। तो यहाँ सारी बाउंड्रीज को तोड़ के ये काम कर दिया है। इसको तोड़ के काम। बिल्कुल। Thank you so much, Toris sir, Thank you, Ruma ma'am, Thank you, and so Rahul. much. Thank you. so much. Thanks for your time. Thank you so much. All the best to you. All the best to you. Thank you, sir. God bless you. Thanks for watching this video. Please support Artkeeper, subscribe and share.